Then we also seen how to use the binding. Okay, different types of binding. Okay, there is the two types of binding: early binding and late binding. Yes. Who? Okay, okay. Ask him to. Okay, okay. Yes, yes. Okay, okay. Okay, आ गया problem. Okay. So yesterday we seen two types of binding: late by early binding and late binding, right? So now today we'll see the next one, that is a operator exact. What is the operator overloading? How it is being overloaded, and how the meaning of the original operator is not going to be changed. Okay, guys. The meaning is what? Operator overloading means what? We are giving the new concept, okay, for the that data type, or special meaning of that data type, or variable or identifier, we can say. Okay, suppose here I will delete this one. Suppose I want to do the addition of two numbers, a and b, right? You will get something output. Okay, we are considering as a c, or ऐसा बोल सकते a is equal to 10, b is equal to 20, then what? C is equal to what? A plus b. So what will be the output from C? Yes, guys, this A is 10, B is 20, and what is the final output of C? Is equal to what? 30. This is the normal way that we are executing the arithmetic operation, right? But suppose this is my name of the class, student. Okay, but student contain integer A comma integer B. Okay, student, these two variable, these two identifiers, or these two variable are there in a student class. Okay, now what I want to do, I want to create two object of the student, s1 comma s2. Okay, and what I want to do, again I want to create one s3. Okay, s3. So these are the normal variables, so we can directly go for the addition. Okay, because this plus is going to give the addition of a and b. Are you getting my screen, guys? Yes, Saurabh, Prabal? Okay, so what I'm trying to say, this is the normal addition. These are the variables. A is variable, B is variable, C is variable. We are doing the addition of A and B and storing the value into the C. This is what? This is the object, right, guys? And this is a class contain two variables A and B, and I'm going to creating student S1, S2, S3. I'm talking about operator overloading, not function overloading. Now, this S1, S2, and S3, these are the three object of the class. Same like your A, S1 is behave like A, okay, S2 is behave like B, and S3 is behave like C. But we can't give, or I can't give value like this one. ऐसे कभी value दे सकते हैं क्या हम? Yes, guys, these are the objects. ऐसे कभी value दे सकते हैं क्या object को? Yes, please. No, sir. नहीं दे सकते. तो इसको अभी मुझे एडिशन करना है. व्हाट वी आई नीड टू डू, जैसे मैंने C इज इक्वल टू A प्लस B किया था, वैसे मैं S3 इक्वल टू S1 सॉरी S1 प्लस S2 करूंगा अभी. तो ये पॉसिबिलिटी कितनी ट्रू है, कौन बताएगा मुझे? इट इज पॉसिबल और नॉट, बिकॉज दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ऑब्जेक्ट कंटेन व्हाट? यस प्लीज. S1 कंटेन A, राइट? बराबर है कि नहीं? एंड S1 अगेन कंटेन B आल्सो. S1 के अंदर कौन कौन है? यस गाइस, S1 के अंदर A भी है और S1 के अंदर B भी है. वैसे ही S2 के अंदर कौन है? ये A है, कॉमा S2 के अंदर कौन है? B भी है. वैसे ही S3 के अंदर कौन है? A है, और S3 के अंदर कौन है? B भी है. तो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस प्लीज. These are the three objects, S1, S2, S3. Okay, and this S1 contain these two variables, this S2 contain again these two variables, this S3 contain again these two variables. तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, S1 डॉट A is equal to 10 वैल्यू, S1 डॉट B is equal to 20 वैल्यू. ऐसे लिख सकते हैं हम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, S1 डॉट, देखो मैं यहां ऐसे लिखूंगा S3 डॉट A, ठीक है, इक्वल टू S1 डॉट A प्लस S2 डॉट A. ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं पर उसके अंदर का डेटा यूज वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये एडिशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा। सेम थिंग इसको मैं बी के साथ भी करूंगा, ये है मेरा बी। ठीक है, यहां भी बी आएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अभी मैंने किया क्या है, देखो अभी तक मैंने वही किया है जो ऊपर हमने यहाँ लिखा है। ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल ही है, पर वो क्लास के ऑब्जेक्ट है, इसलिए उस क्लास के वेरिएबल है, इसलिए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया, उसको फेच किया है। ठीक है, तो इस ये जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ मैंने दो जगह लिखा है। ठीक है, बट व्हाट इज दिस कंसेप्ट, ये मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऐड किया है। ओके, देखो हम ये करते हैं, ये जो पता है आपको, सी आउट। ठीक है, ये करते हैं, यहाँ कुछ तो मैसेज लिखते हैं। ठीक है, सी आउट इज व्हाट, कौन बताएगा सी आउट क्या है, ये आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ना, बराबर है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट किसी के साथ यूज करना है, अभी ऑब्जेक्ट हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, इस मैसेज के साथ यूज कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के साथ यूज करना चाहेंगे, तो हमको इस ऑब्जेक्ट को किसी ऑपरेटर से ओवरलोड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर बताया था मैंने, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा फेच करेगा और डिस्प्ले करेगा, और जो उल्टा है कौन सा, सी वाला, ये कौन सा ऑपरेटर है, यस, दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर। डेटा क्या करता है, इंसर्ट करता है इस ए में। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस। सो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड इफ यू वांट टू यूज these two objects, you need to overload these two ऑपरेटर्स। तो ये ऑलरेडी सी प्लस प्लस में ऑलरेडी ओवरलोडेड है। अगर आपको फिर से चेक करने कैसे ओवरलोड किया तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो दिस डोंट कीप इन माइंड। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा पर थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। नाउ दिस इज अ सिंपल थिंग दैट आई वांट टू डू द एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स नाउ। तो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है गाइस, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आई वांट टू ओवरलोड दिस प्लस ऑपरेटर, ओके, विद दिस क्लास। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कोड लिखा है ना मैंने, ये कोड मुझे कहां लिखना पड़ेगा, इस प्लस ऑपरेटर के कोड में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तभी क्या होगा, s3.a का एडिशन मिलेगा, s3.b का एडिशन मिलेगा। ठीक है ना, तो s3, अगर s3.a और s3.b के जगह में s3 लिख सकता हूं ना, यस प्लीज, s3.a एंड s3.b की जगह में डायरेक्टली s3 लिख सकता हूं ना, क्योंकि s3 में ही है ना a एंड b। वैसे ही s1.a की जगह और s1.b की जगह में क्या लिख सकता हूं, s1 लिख सकता हूं। सेम s2.a की जगह और s2.b की जगह में क्या लिख सकता हूं, s2 लिख सकता हूं। यहां कोई जरूरत नहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, क्योंकि यहां डायरेक्टली वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। बट इफ यू वांट टू डू द एडिशन ऑफ दिस थिंग्स, ओके, सो दिस वी शुड बी प्लस शुड बी गेट ओवरलोडेड। अभी अगर मैंने यहां ऐसे लिखा, यहां माइनस लिखा, ठीक है, माइनस लिखा और प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया, तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, एडिशन होगा क्या सब्सट्रैक्शन होगा। मैंने कोड में यही लिखा है, ठीक है, पर सिर्फ ऊपर आपको दिखने के लिए क्या लिखा है, एडिशन लिखा है। तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, यस प्लीज। डिपेंड्स अपॉन दिस कोड। देखो ना, सिंपली है, हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और ऊपर ओवरलोड क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बाकी अगर आपने प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया है कि अंदर जाके भी एडिशन ही होना चाहिए। बट दिस इज अ रिकमेंडेशन दैट, और वी कैन से दिस इज अ रॉन्ग प्रोसीजर, दैट इफ यू आर ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर यू शुड डू द एडिशन। ओके, तो मैंने ये लिखा क्यों है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैंने ऑपरेटर प्लस ओवरलोड किया है और उसके अंदर मैंने सब्सट्रैक्शन किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्लस का जो मीनिंग है, जो एडिशन करता है, वो बाद में सब्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन, इज योर प्लस इज गोइंग टू बी चेंज विद द माइनस, दिस इज माय क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन गाइस, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन इज व्हाट, इफ आई डूइंग द सब्सट्रैक्शन इनसाइड द कोड, जो फंक्शन हम लिखने वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग का,
ठीक है, उसके अंदर मैंने सब्सट्रैक्शन किया है, पर ऊपर तो प्लस का ओवरलोड का ऑपरेशन लिखा है। तो इसका मीनिंग ये है क्या, इसका जो एडिशन का जो काम है वो सब्सट्रैक्शन में बदल जाएगा। एक्चुअल में नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्लस का मीनिंग है वो प्लस ही रहेगा। दिस इज जस्ट व्हाट वी आर ओवरलोडिंग, मींस वी आर गिविंग द स्पेशल मीनिंग टू दिस प्लस। एक्चुअल मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, प्लस का माइनस कभी भी नहीं होगा, माइनस का प्लस कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। अगर ऐसे होने लगा तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी। अंडरस्टूड गाइस? ये समझ में आ गया ना? तो जब हम इसके अंदर माइनस लिखेंगे तो इस प्लस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, एडिशन का एडिशन ही होगा। ठीक है ना? यहां क्या होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। बस सब्सट्रैक्शन क्यों होगा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अंदर हमने कोड ही ऐसा लिखा है, वो भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ये समझ में आ गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना कैसे है? ये है। ठीक है, सपोज और एक मेरे पास एस फोर मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट का, ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि इसके साथ कौन है, दो ऑपरेंड्स है, S1 एक है, S2 एक है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है S4 मैंने और एक क्रिएट किया है, स्टूडेंट S4 क्रिएट किया। ठीक है गाइस, तो अभी क्या करना है, मुझे ए को इंक्रीमेंट करना है, ओनली सिर्फ एक के साथ इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, S4 प्लस प्लस करूंगा। इधर क्या होगा पता है, अगर S4 के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने सिर्फ ए का इंक्रीमेंट का कोड लिखा है, ए प्लस प्लस का कोड लिखा है, तो सिर्फ ए प्लस प्लस होगा। अगर बी प्लस प्लस का कोड लिखा है तो बी प्लस प्लस भी होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस गाइस, अगर मुझे सिर्फ S4 को ये करना है, इंक्रीमेंट करना है, सो दिस इज व्हाट द यूनरी ऑपरेटर, बिकॉज दिस इज कम्स विद द ओनली वन ऑपरेटर, वन ऑपरेंड, सॉरी। पिक्चर क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट अस नो व्हाट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज। इन C++ we can make operator to work as user defined classes, जैसे कि आपने स्टूडेंट क्रिएट किया। This means C++ has ability to provide operators, बघा this is very important, operators with the special meaning for the data type। मतलब ये जो लिखा है हमने, उसका तो मीनिंग है ही खुद का, प्लस का मीनिंग क्या है, एडिशन करना, उसका तो खुद का मीनिंग है ही, और वो नॉर्मल वेरिएबल के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ कभी नहीं होता है, ध्यान में रखो। तो हम उसको स्पेशल मीनिंग देते हैं बाबा कि ये ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्क करे। ठीक है, फॉर द डेटा टाइप्स दिस एबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये जो एबिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विच एबिलिटी, डू द एक्स्ट्रा वर्क अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल मीनिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वी कैन ओवरलोड ऑपरेटर प्लस in class like string so that we can concatenate two string by just adding the using plus। देखो जावा में ये जो ऑपरेशन है ये डायरेक्टली है, अगर मैं string 1 लूंगा, ठीक है, और उसके साथ string 2 लूंगा, देखो मैं यहाँ एग्जांपल लिख के दिखाता आपको, ये जावा में ऐसा लिखता है string s1, s2। अगर मुझे डिस्प्ले करना है, ये जावा में ऐसे लिखते हैं sysout और system.out.println लिखते हैं, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। मुझे प्रिंट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, दोनों का कॉन्बिनेशन करना है तो S1 प्लस S2। यहाँ ऑपरेटर ओवरलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जावा दे देता है। ठीक है, तो जावा में एक्चुअली कंसेप्ट ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ही नहीं, फंक्शन लोडिंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सो अदर एग्जांपल क्लासेस वेयर अरिथमेटिक ऑपरेशन मे बी ओवरलोडेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, बिग इंटीजर एंड एटसेट्रा। ठीक है ना? तो ये जो प्लस है, इसकी जगह हम माइनस भी ओवरलोड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवरलोड कर सकते हैं, डिवीजन ओवरलोड कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हो। बट देयर आर सम ऑपरेटर्स आर देयर दैट वी कांट ओवरलोड, सो आई विल प्रोवाइड द लिस्ट which operator can overload and which can't। okay guys, so this is what the simple concept of operator overloading। यहाँ एक एग्जांपल है, एग्जांपल थोड़ा सा इजी है एक्चुअली, मैं आपको यही पहले समझाऊंगा, बाद में देन विल गो विद द अनदर एग्जांपल्स, राइट? सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। एग्जांपल दिख रहा है सबको गाइस? यस प्लीज। Yes, sir. Okay, now let's see, this is a class complex। now complex number you already know, complex number always come with the two values, real and imaginary। yes or no? बराबर है ना? okay, now this is a two private variables,
real and imaginary, means we can't access this outside the class, and here we are not taking another class, we have taken only one class, public. This is what, ये क्या है, ये कौन से टाइप का ये है, फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, बराबर है कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर यू कैन आल्सो यूज अनदर अनदर फंक्शन इफ यू वांट, ठीक है? तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को पहले क्या इनिशियलाइज किया है, जीरो से इनिशियलाइज किया, देखो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, ठीक है? अभी तो इस रियल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, इस इमेजनरी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी हो क्या रहा है, देखो, दिस इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्लस इज यूज बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ये कब होगा यूज होगा, ये एडिशन, देखो ये दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे नॉर्मल फंक्शन है। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोड, ओके, लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन मतलब जहां हम ऑपरेटर ओवरलोड करने वाले हैं, और नॉर्मल फंक्शन मतलब ये वाला, ये प्रिंट वाला फंक्शन, इसके साथ ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करना है आपको। लेट्स सी, द ऑपरेटर फंक्शंस आर द सेम एज नॉर्मल फंक्शन, मतलब ऑपरेटर फंक्शन भी सेम नॉर्मल फंक्शन होते हैं, सिंटैक्स भी दोनों का सेम ही रहता है। ओनली द डिफरेंस आर नेम ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज ऑपरेटर कीवर्ड followed by the symbol of operator, and operator function are called as a corresponding operator is used। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन दिख रहा है आपको, द नेम ऑफ ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज ऑपरेटर कीवर्ड फॉलोड बाय विद द ऑपरेटर नेम। देखो, दिस इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर कीवर्ड, दिस इज ऑपरेटर कीवर्ड है, ये मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये कीवर्ड है और उसके साथ क्या आ रहा है, वो प्लस ऑपरेटर आ रहा है, एंड दिस इज द रिटर्न टाइप, व्हाट यू वांट टू रिटर्न। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस प्लीज। नॉर्मल फंक्शन, देखो अगर इस फंक्शन, अगर मुझे नॉर्मल फंक्शन लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स प्लस, ये रिटर्न टाइप हो गया, यहां लिखूंगा मैं फंक्शन का नाम, सपोज fun1 इनटू ब्रैकेट लाइक दिस, ऐसे लिखूंगा, दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन। और यहाँ रिटर्न क्या लिखना है आपको, कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ये है नॉर्मल फंक्शन और ये है ऑपरेटर फंक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हटा दो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, और ये फन हटा के ये डाल दो तो ऑपरेटर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है? तो जब भी आपको ऑपरेटर फंक्शन का ओवरलोड लिखना है, जब भी हमें ऑपरेटर फंक्शन का ओवरलोड लिखना है तो हमको क्या करना है, ये चीजें आपको लिखनी है। समझ में आ गया? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटर। अगर आपको यहाँ माइनस लिखना है तो माइनस लिखो, मल्टीप्लिकेशन लिखना है मल्टीप्लिकेशन लिखो, सब्सट्रैक्शन लिखना है सब्सट्रैक्शन लिखो, प्लस प्लस लिखना है प्लस प्लस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अंदर का जो कोड लिखा है वो मैटर करता है कि आपका आउटपुट क्या आता है, ठीक है? अभी यहाँ मैंने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अंदर जो भी है वो एडिशन होगा। देखो हमने अभी जो देखा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने कॉम्प्लेक्स का, ठीक है? ये देखो ये कॉम्प्लेक्स क्लास जो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज अ कॉपी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? एक कांस्टेंट क्यों बनाया, क्योंकि इसका वैल्यू हमको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। गेटिंग और नॉट गाइस? यस प्लीज, समझ में आ रहा है ना आपको? अभी देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपका कि हमने तो सर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का एडिशन करना है हमको। देखो यह एडिशन कैसे हो रहा है, एक रियल है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और एक यहाँ दूसरा वेरिएबल लिखा है जिसके साथ ये पास किया हुआ ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, और यहाँ जो तीसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो देखो मैं यहाँ आपको पिक्चर ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ C3, C3 मतलब, यस गाइस, और यहाँ लिखता हूँ मैं C1, और ठीक है C1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं C3, अभी C2 किधर गया, यहाँ लिखता हूँ मैं C1, यहाँ लिखता हूँ मैं C, ठीक है?
जब हम ऑपरेटर पास करने वाले हैं, देखो इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, हम एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ कंसिडरेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ और एक ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉमा C2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे यहाँ लिख सकते हैं C1 डॉट रियल, C1 डॉट इमेजनरी, C2 डॉट रियल और C2 डॉट इमेजनरी। पर आपका यहाँ एक कंपाइलर क्या करता है, एक सिंपल ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो तीसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्या करता है, वो कंसिडर कर लेता है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। अभी देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स कितना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, C3, जिसमें हमको ऑलरेडी क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो C3 डॉट रियल में आएगा, यस, C1 डॉट रियल एंड C2 डॉट रियल। ये C1 आप इसको लगाओ या इसको लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। C3, ये भी C3 क्या है, इमेजनरी है, ये C1 का इमेजनरी होगा, ये C2 का इमेजनरी होगा, चाहे आप C1 यहां लगाओ और यहां लगाओ। पता है, अगर आपने C1 दूसरे को दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अगर आपने C1 इसको दे दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी C2 हो जाएगा। मतलब बिहाइंड द सीन क्या होगा, ये C2 हो जाएगा, ओके, बिहाइंड द सीन ऐसे हो जाएगा, कंपाइलर ऐसे असाइन करेगा। पर हमको ये C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि C2 हमने क्रिएट ही नहीं किया है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पिक्चर क्लियर और नॉट गाइस? यस प्लीज। एकदम सिंपल है, देखो आपको लिखना है C2 लिख सकते हो, पर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है वही लिखना है आपको। अगर आपको C1 यहाँ लिखना है तो C1 यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सर पहले C1 आता है तो C1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। C1 लिखो और यहाँ का C1 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में क्या है, सेम ही आएगा। अभी समझ में आ गया, दिस इज अ C1 एंड दिस इज व्हाट माय C2। C2 इज अ बिहाइंड द सीन, पर दोनों का इंस्टेंस तो क्रिएट होने वाला है, जैसे हमने यहाँ क्रिएट किया है। पिक्चर समझ में आ गया गाइस? देखो ये दो ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग जगह क्रिएट किया है, बट ये दो ऑब्जेक्ट साथ में एग्जीक्यूट होने वाले, पहले C1 कॉल होगा, बाद में C2 कॉल होगा, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ये दोनों जाएंगे यहाँ इस ऑपरेटर के साथ। C1 इसको असाइन होगा और बाय डिफॉल्ट C2 किसको असाइन होगा, या असाइन होगा, दोनों का एडिशन होगा, किसमें, C3 में स्टोर होगा, और इस C3 हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जो कि इस C3 को आके असाइन करेगा। देखो यहाँ लिखा है, ये जो प्लस ऑपरेटर है, यह हमने उसको लोड किया है, ओवरलोड किया है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये C1 C2 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए हम C1 C2 को ओवरलोड कर सकते हैं प्लस के साथ। अगर ये कोड नहीं लिखा होगा तो आपको यहाँ एरर कंपलसरी देगा, क्योंकि ये ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया ही नहीं था। एन एग्जाम्पल टू कॉल ऑपरेटर प्लस, तो यहाँ जो भी एडिशन होगा वहां हमने जाके प्रिंट करना है। इस रियल का वैल्यू कितना मिलेगा, यस 10 प्लस 2 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और इमेजिनरी का कितना मिलेगा, 5 प्लस 4 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। समझ में आ गया गाइस? यस प्लीज। यहाँ प्लस आई क्यों लिखा है, बिकॉज इमेजनरी के साथ हमेशा आई आता है, आई इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ इमेजनरी वैल्यू। समझ में आ गया? ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड। ठीक है, चला गया। देखो अभी यहाँ एग्जीक्यूट कैसे होगा, यहाँ आपका कोड आएगा, जैसे ही ये तो इनिशियल वैल्यू है, दो बार हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो दो बार ये क्या होगा, ये लाइन कॉल होगी, 8 लाइन नंबर 8, दो बार वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। और साइमल्टेनियसली C1 C2 कॉल होगा, यहाँ आएगा ऑपरेटर प्लस के जगह, दोनों का एडिशन होगा, और क्या होगा,
आपको C3 में डेटा मिल जाएगा। C3 में मिलेगा क्या, रियल और इमेजनरी मिलेगा, और वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जाके प्रिंट कर रहे हैं, इसमें रियल है और इमेजनरी पार्ट है। लेट्स सी द आउटपुट। जैसे मैंने बोला आउटपुट क्या होना चाहिए, 12 एंड 9। रियल का वैल्यू 12 आएगा और इमेजनरी का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। आ गया गाइस, 12 प्लस I9। पिक्चर क्लियर हो गया आपका। अभी देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं माइनस, ठीक है, यहां थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूं, क्योंकि क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो कर देता हूं। अभी मुझे बताओ आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। हमने यहाँ प्लस ही लिखा है, ठीक है, पर उसके अंदर कोड क्या लिखा है, गलत कोड लिखा है, तो आउटपुट भी क्या ही मिलेगा आपको, गलत ही मिलेगा। ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, जो भी डेवलपर है, जो भी यूजर है, उसको पता चल रहा है बाबा कि आपने ऊपर तो ये लिखा है, व्हाट, देखो ये माइनस क्यों आ गया, पता चला आपको, क्योंकि ये कोड पहले एग्जीक्यूट हो गया, ये C2 पहले एग्जीक्यूट हो गया, बाद में C1 एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहां दे दू C1 डॉट और यहाँ का ये निकाल दो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एकदम सही आएगा। अभी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। पहले अभी यहाँ क्या हो गया, पहले C1 एग्जीक्यूट हो गया, C1 ब्लैंक आ गया, मतलब इस यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास करना है, और C2 को जो यहाँ पास किया है वो आ गया। एम आई गेटिंग गाइस? यस प्लीज, समझ में आ गया ना। ओके, यहाँ वही प्रोग्राम हम और एक जगह कर सकते हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, फ्रेंड फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ फ्रेंड फंक्शन लिखा है, सेम है कंसेप्ट। लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड आल्सो। क्या लिखा है देखो यहाँ फ्रेंड फंक्शन में, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, सेम ही कोड है, कॉम्प्लेक्स एंड प्रिंट। यहाँ नॉर्मल ऑपरेटर ओवरलोड की जगह हमने क्या लिखा है, यस प्लस लिखा है। और यहाँ देखो दो ऑब्जेक्ट पास किए हमने, क्यों दो ऑब्जेक्ट पास किए हैं, क्योंकि यहाँ स्टोर करने के लिए तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए। कुछ समझ में आ रहा है ना, जो हमको चाहिए वही ये एग्जांपल हमको मिला है। दिस कांस्टेंट इज फॉर, सॉरी यहाँ दिस कांस्टेंट इज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट C1, या देखो C1 रियल प्लस C2 रियल लिखा है हमने। तो अभी यह क्या होगा, दोनों का एडिशन हो गए, डायरेक्टली हमने कॉम्प्लेक्स ही रिटर्न किया है, तो क्या होगा, इसका एक इंस्टेंट बनेगा, और इस इंस्टेंट किसको असाइन होगा, इस C3 को असाइन होगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो ये जब हम रन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 प्लस 20 12 मिलेगा, और या 5 प्लस 9 5 प्लस 4 9 मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, जस्ट द वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस वन। आ गया, यस प्लीज, समझ में आ गया ना। यस और नो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये एग्जांपल किसका है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी क्यों बोला है, क्योंकि ये जो प्लस है इसके साथ दो ऑपरेंड आ रही है, फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज द सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। और यहां भी देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड C1 प्लस दिस इज द सेकंड ऑपरेंड। अभी मैं यहां माइनस कर देता हूं, यहां माइनस किया मैंने, ठीक है, तो मुझे कहां का माइनस करना पड़ेगा, यहां भी माइनस करना पड़ेगा, और यहां भी माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ आउटपुट में क्या चेंज आएगा जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा कोड। तो यस, कौन बताएगा। अगर मैं एज इट इज कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या चेंज आएगा, रन करके दिखाओ। आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ आपको दिखने के लिए ऊपर का ऑपरेटर चेंज किया है, पर अंदर का कोड क्या लिखा है, एज इट इज लिखा है। अगर आपको एक्चुअल चाहिए चेंज करना है तो यहाँ माइनस लिखो, यहाँ लिखो माइनस, ठीक है। अभी क्या होगा, आपके ऑपरेटर जैसा ही बिहेव करेगा। चलिए आ गया 8 माइनस, सॉरी 1।
यहाँ हमने प्लस लिखा है, किधर गया वो, इधर इधर, इसीलिए वो प्लस आ रहा है। यहाँ पे क्या करो, आपको माइनस ही करना पड़ेगा। जैसे आपको चाहिए वैसे हम क्या कर सकते हैं, कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? यस प्लीज। नाउ यस, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यूनियन ऑपरेटर लोडिंग। देखो एक क्लास है डिस्टेंस, दिख रहा है ना क्लास? यस, आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? Okay, now the distance is my next class. Here we are overloading the unary operator. Okay, now what we have to do, see, let's see. Distance, there are two private variables, feet and inches. Okay, then the public one function, this is a constructor, normal constructor, this is a parameterized constructor. If you want to create a function, you can create. मुझे constructor यूज करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं constructor यूज करता हूँ. Instead of constructor, if you want to create object, another function, you can create, or you need to create the object and call that function. ठीक है guys? Now अभी इतना सिंपल, ये यूनिट ऑपरेटर बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा झिकझिक नहीं है. देखो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस में आपका जो फीट और इंचेस दो वेरिएबल है वो जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है. डिस्टेंस ये जो है कंस्ट्रक्टर, इसको हम कुछ तो वैल्यू पास कर रहे हैं, जीरो भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्प्लेइंग द डिस्टेंस. ओके, सो एफ को हमने फीट कंसीडर किया और आई को हमने इंचेस कंसीडर किया. जो भी वैल्यू आपको यहां से मिल रही है दो कंस्ट्रक्टर से, ये हम यहां क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ हियर वी आर डन द माइनस ऑपरेटर ओवरलोड. देखो इस ब्रैकेट में हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ थोड़ा सिंपल है, सिंपल मतलब बहुत सिंपल है. यहाँ क्या लिखा है हमने, माइनस लिखा है. ठीक है, डिस्टेंस इज द रिटर्न टाइप, ऑपरेटर माइनस. तो अभी मुझे करना क्या है, ये जो फीट है इंचेस है उसको सिर्फ माइनस में कन्वर्ट करना है, यूनियरी ऑपरेटर करना है. तो क्या होगा, फीट फीट उसको माइनस कर दिया, बाकी कुछ नहीं. देखो कितना सिंपल किया है मैंने, जो वैल्यू है उसको सिर्फ हमने निगेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, हम बाद में प्लस, मैं इसके ऊपर प्लस प्लस भी करके दिखाऊंगा आपको, जो भी है. यहाँ है फीट और यहाँ है क्या है, इंचेस. और ये हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर के दो वैल्यू पास कर दिया, ताकि क्या होगा, जो फीट मिल रहा है वो माइनस होकर इस फीट में स्टोर हो जाए और यहाँ पास हो जाए, यहाँ माइनस इंचेस हो जाए, इसको असाइन हो जाए और यहाँ पास हो जाए. जब भी हम इसका डिस्टेंस का ये कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो क्या होगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, माइनस वाली वैल्यू मिल जाएंगी. पिक्चर क्लियर हो गया? यस गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये हमने D1 कॉल किया है. D1 कॉल करने के बाद फीट का वैल्यू कितना हो गया, 11. इंचेस का वैल्यू कितना हो गया, 10. तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, यस प्लीज, -11 और -10 मिलेगा. सॉरी, -11 एंड -10 मिलेगा. बराबर है ना, बराबर है. अभी यहां क्या मिलेगा, कौन बताएगा मुझे, यहां क्या मिलेगा, D2 को. तो D2 चेक करो, है क्या इधर, माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा, और यह 11 प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा. बराबर है कि नहीं? देखो माइनस हमने किसके साथ लिखा है, D1 के. D1 इज माय ऑब्जेक्ट. यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, आपको जो फंक्शन ओवर, अपने जो ऑपरेटर ओवरलोड किया है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज करना है, ना कि नॉर्मल वेरिएबल. अगर नॉर्मल वेरिएबल के साथ यूज करोगे तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कभी नहीं कॉल करेगा, क्योंकि हमने उसको किसके साथ असाइन किया है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ असाइन किया. ये ध्यान में रखो. ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड आल्सो. पहले का आउटपुट क्या मिलना चाहिए, -11 -10. दूसरे का क्या मिलना चाहिए, +5 -11. आ गया, कितना आ गया, f -11 i -10. देन जो माइनस था वो प्लस हो गया, और दूसरा क्या है, i -11. समझ में आ गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट? यस प्लीज. यस सर. अभी देखो, मैं इसको ही क्या कर देता हूँ, ऑपरेटर प्लस प्लस कर देता हूँ. तो अंदर जाके भी मुझे क्या करना है, प्लस प्लस करना है,
यहाँ भी जाके प्लस प्लस करना है, ठीक है। और कहाँ करना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ मैं ये कर देता हूँ। तो मुझे बताओ अभी आउटपुट में क्या चेंज होगा। यस, आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा। आप देख लो कितना हो गया, 11 का 12 हो गया, 10 का 11 हो गया, 5 का 6 हो गया, 11 का 12 हो गया। यहां हमने इंक्रीमेंट किया है। पिक्चर क्लियर हो गया। यस, अगर आपको यही चीज करना है फिर से एक बार, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, इसको करता हूं मैं माइनस माइनस, अंदर जाके भी माइनस माइनस करो। दिस इज व्हाट, डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको एक जगह कॉल करते हैं, हम क्या करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, d3 इंटू ब्रैकेट 10, 20 सेमीकोलन, एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, माइनस माइनस d3, ठीक है, सेमीकोलन एंड d3 माइनस डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अभी इन दोनों का तो एडिशन आ गया, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा गाइस, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट कंपाइल द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड लेट सी द आउटपुट। पहले दो जगह इंक्रीमेंट मिलेगा और तीसरी जगह क्या मिलेगा, डिक्रीमेंट मिलेगा। देखो आ गया, 10 का 9 हो गया और 20 का 9 हो गया, बराबर है गाइस। यस, यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ द यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अभी लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा फॉर टुडे ओनली, टुमारो विल सी अगेन अनदर एग्जांपल्स। इसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट द आउटपुट विल बी शोन टू यू, ठीक है। ये कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। अब ये कोड चेक करो आप और मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा इसका, चेक कर लो कोड। कुछ नहीं है, सिर्फ ज्यादा फंक्शन लिखे, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ सेट किया है, सेट मतलब वी आर सेटिंग द लेंथ टू द लोकल वेरिएबल, वी आर सेटिंग द ब्रेड्थ टू द लोकल वेरिएबल, सेटिंग द हाइट टू द लोकल वेरिएबल। इसका ज्यादा टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन फंक्शन। देखो कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया है, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया है, मतलब लेंथ का जो है दो ऑब्जेक्ट का लेंथ बनेगा, ठीक है, और वो एडिशन होगा। क्या देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट बॉक्स बी लिखा है। सो बी इज वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट, डायनामिक ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्परसैंड, एंड दिस विल बी असाइन टू द, यू कैन असाइन टू लेफ्ट साइड आल्सो प्लस और राइट साइड आल्सो प्लस, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी ये चेक करो वैल्यू और मुझे बताओ आउटपुट क्या क्या होगा। देखो यहां एक वैल्यू प्रिंट किया है, वॉल्यूम प्रिंट किया है, ठीक है, यहां एक वॉल्यूम प्रिंट किया है और यहां एक वॉल्यूम प्रिंट किया है। बताओ यहाँ गेट भी लिखा हुआ किधर, ये देखो यहाँ गेट वॉल्यूम लिखा है, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो तीन ऑब्जेक्ट बने तो तीन बार ये गेट वैल्यू क्या होगा, कॉल होगा। सेट वैल्यू तीन बार अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है। आप एक बार भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सेट वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको, यस प्लीज, रहने दो ऐसे ही, यस प्लीज, ऐसे रहने दो, क्या एक ही फंक्शन बना दो उसका। सर एक ही फंक्शन। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये अलग अलग फंक्शन लेके उन्होंने क्या किया है, वैल्यू से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बाबा कि इतने सारे फंक्शन क्यों है, तो एक ही फंक्शन बनाते हैं सेट वॉल्यूम, इसमें तीन पैरामीटर पास करते हैं और तीन क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, बस।
और यहाँ एक ही आएगा बॉक्स 1 डॉट सेट वैल्यूज, बॉक्स 2 डॉट सेट वैल्यूज। तो मुझे ये चेक करो और मुझे आउटपुट बताओ कितना आएगा इसका। सिंपल है भाई। सर बॉक्स 1 में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। हाँ, बॉक्स 2 में एडिशन, नहीं वही बॉक्स 2 में सभी में जो एडिशन ही होगा। सेकंड, और बॉक्स 3 में एडिशन वाला, दोनों के एडिशन लेंथ एंड देन मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट बताओ ना, आउटपुट कितना आएगा, कैलकुलेट करो आप। सर 230 फॉर बॉक्स 1, बॉक्स 2 का ऊपर दिखाओ, आपको चेक करो फिर से एक बार। देखो यह मैंने आउटपुट लिखा है, इतना आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट द कोड। अब ये कैसे आया, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आ गया 210 1560 एंड 5400। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? यस प्लीज। यस हो गया सॉल्व। यस सर। सिर्फ यहाँ एक ही जगह हमने प्लस लिखा है, बाकी जगह मल्टीप्लीकेशन ही। देखो यहाँ सिर्फ एक ही जगह प्लस लिखा है, मतलब जो बॉक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस ब्लॉक्स 2। देखो यहाँ दोनों का आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, दोनों का एडिशन करके देखो। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो इन तीनों का। तो ये आउटपुट मुझे क्या चाहिए, चलिए समझ में आ गया। सिंपली है, क्या क्या होगा पता है मुझे, इसका इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस इसका इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस इसका और इसका। पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा? पहले सो प्लस फर्स्ट होगा, पहले प्लस एडिशन। होगा ना, ये पहले प्लस लिखा है तो पहले प्लस होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, और बॉक्स 1 का भी ऐसे होगा, बॉक्स 2 का भी ऐसे होगा, और फाइनली बॉक्स 1 और 2 हमने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, और जो ऐड हुआ है उसको भी हमने क्या किया है, देखो बॉक्स 3 को भी गेट वैल्यूम की है, इसीलिए फिर से उसका वैल्यू क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। देखो यहाँ सिंगल वैल्यू था, यहाँ डबल ट्रिपल, ये कितना हो गया, डबल ट्रिपल ज्यादा हो गया, मतलब ये 10 टाइम हो गया, और ये भी कितना हो गया, 3 टाइम बढ़ गया, 3 टाइम 4 टाइम बढ़ गया। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये कौन से टाइप का ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया यहाँ? यस प्लीज। यस, ये कौन से टाइप का ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया है, कौन बताएगा? बाइनरी ना सर? यस बाइनरी है, दो है ना, इधर एडिशन किया है ना हमने। ठीक है गाइस, okay, so we'll stop over here because today is very what we can say, overload for you head also, my head also, because these too much examples that we have taken. Okay, that should not be go from overhead. So let's stop over here. So मैंने ये जो भी अभी जितने भी कोड लिखा है आज का, वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। ओके, ये आपको पिकअप करके एटलीस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट द कोड एंड लेट्स सी आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है गाइस, आपको अलग अलग तरीके से पॉसिबिलिटी, मैंने कल ही बोला था, जितने पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है, एटलीस्ट रन करके देखो ये पॉसिबिलिटीज रन हो रही थी नहीं। जो भी हमने कोड रन किया है मेरे मशीन के ऊपर, वो आपके इधर भी एग्जीक्यूट होना चाहिए और सेम आउटपुट आना चाहिए। इसमें आपको जो चेंज करना है वो मॉडिफाई करके आप ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, यस सर। ओके, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।